Hello students, how are you? Today our second chapter of computer for class 4th. In first chapter we cover what is computer systems. In this chapter we cover what is computer and characteristic of computer. Then we cover peripheral devices, input and output devices and computer parts. Now, second chapter. In this chapter we cover types of computers. This chapter lists various characteristics of computer that make it different from other machines. It also discusses the different generations of computers. Overall, types of computer. A computer is one of the most brilliant inventions of mankind. Thanks to computer technology, we have been able to achieve storage and processing of huge amount of data. We can rest our brands by employing computer memory capacity for information storage. Owing to computer, we have been able to achieve higher processing speeds, carry out critical transactions, and that too with great precision and accuracy. Means कंप्यूटर के आपका जो भी मानव द्वारा आविष्कार किए गए हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशंस है, ठीक है, मतलब आविष्कार है। कंप्यूटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं, बिकॉज हमें ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है बहुत अच्छी है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में काफ़ी दिनों के लिए या फिर काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एंड जब कभी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको कमांड के द्वारा तुरंत उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह रहते हैं कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, उनकी जो स्पीड रहती है एंड जो एरर होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं एंड स्पीड बहुत अच्छी रहती है। We will start types of computer. We can divide basis of classification. The main factors for classification of computer are operational principle, size and processing power and use, ठीक है। फर्स्ट हम लोग करेंगे ऑपरेशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम कंप्यूटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वन हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपके तीन हमने किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स। देन व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? Analog computers can perform several mathematical operations simultaneously. They use continuous variables for mathematical operations and utilize mechanical or electrical energy. Hence, they are different from digital computer. There are almost extant today. Means ये सारे कंप्यूटर जो एनालॉग है ना, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी जो स्पीड वगैरह रहती है बहुत अच्छी होती है एंड ये डिजिटल कंप्यूटर से डिफरेंट होते हैं। ये ऑलमोस्ट आज के दिन ख़त्म हो चुके हैं, बट ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारा एनालॉग कंप्यूटर है। ये थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप का इंडिकेटर हो गया, ये सारा क्या आपका एनालॉग है ना। देन सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, दे यूज डिजिटल सर्किट एंड आर डिजाइन टू ऑपरेट on two states, namely with 0 and 1. They are analogous to states on and off. Data on these computers is represented as a series of zeros and ones. Digital computers are suitable for complex computations and have higher processing speed. They are programmable. Digital computers are either general purpose computer or special purpose ones. Special purpose computers, as their name suggests, are designed to specify types of data processing, while general purpose computers are meant for general use. मीन्स हम डिजिटल कंप्यूटर को भी ना फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपका रहता है इसमें स्पेशल पर्पज कंप्यूटर से, और सेकंड हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर रहते हैं ना, वो स्पेशल काम को या स्पेशल डेटा को कलेक्ट करने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, एंड जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं वो जनरल पर्पज यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड वन आपका रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
These computers are combination of both digital and analog computers. ठीक है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं इसमें, ओ सॉरी हाइब्रिड, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन से कौन सा कंप्यूटर बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर. In this type of computer, the digital segment perform processes controlled by conversion of analog signal to digital ones. These are the example of hybrid computers. Now, based on size and processing power, ठीक है, स्पीड एंड उनके साइज के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन मैन फ्रॉम कंप्यूटर, सेकंड वन माइक्रो कंप्यूटर. देन व्हाट इज मैन फ्रॉम कंप्यूटर्स? Large organizations use mainframes for highly critical applications such as bulk data processing and ERP. Most of mainframe computers have capacities to host multiple operating systems and operate as a number of virtual machines. They can substitute for several small servers. मीन्स जो मैन फ्रॉम कंप्यूटर रहता है ना, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज करते हैं. एक मैन फ्रॉम कंप्यूटर से बहुत सारे सिस्टम चल सकते हैं, आपका मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ऑपरेट करता है. ठीक है, और जो सर्वर रहते हैं ना छोटे छोटे, उनको एक सिंपल मैन फ्रॉम कंप्यूटर उनको सब हटा के, मतलब बहुत सारे जैसे किसी जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे सर्वर का यूज हो रहा है, तो आप उनको हटा के एक मैन फ्रॉम कंप्यूटर की वजह की सहायता से सारा वर्क इजीली कर सकते हैं. देन व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? ए कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज माइक्रो कंप्यूटर. यदि आपको पूछा जाए व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, देन सिंपली यू कैन राइट ए कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज microcomputer. They do not occupy space as much as mainframe do. When supplemented with a keyboard and a mouse, microcomputer can be handled personal computers. ठीक है, can be called, अच्छा ठीक है, what is personal computer? तो आप इसको लिख सकते हैं, they do not occupy space much as mainframe do. When supplemented with a keyboard and a mouse, microcomputer can be called personal computer. अच्छा, जो माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज रहता है ना, मैन फ्रॉम कंप्यूटर के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा रहता है. ए मॉनिटर, ए कीबोर्ड एंड अदर सिमिलर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रैम एंड ए पावर सप्लाई यूनिट कम पैकेज इन अ माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, एक के सारे पार्ट्स हो गए. माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज मेमोरी हो गई, इसमें रैम रोम, और पावर सप्लाई में आपका ईपीएस आ गया, मॉनिटर, एंड सीपीयू में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, सीपीयू. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस कंप्यूटर कैन फिट ऑन डेस्क और टेबल एंड प्रूव टू बी द बेस्ट चॉइस फॉर सिंगल यूजर टास्क. तो माइक्रो कंप्यूटर रहते हैं ना, वो सिंगल यूजर के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं, और इनको किसी भी डेस्क या टेबल पे फिट करके हम इनका यूज कर सकते हैं. नाउ थर्ड कैटेगरी, जिसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन यूजेस. बेस्ड ऑन यूजेस, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, पीडीएस, मिनी कंप्यूटर्स, सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर, वेरिएबल कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स. इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर? ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज intended to be used on a single location. The spare parts of a desktop computer are readily available at relatively lower cost. Power consumption is not as critical as that in laptops. Desktop computers are widely popular for daily uses in workplace and households. ठीक है, मतलब इनका जो पावर कंजप्शन कैपेसिटी रहता है ना, लैपटॉप से थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये डेली यूज़ में बहुत यूज़ होते हैं. आपके वर्क प्लेसेस एंड घरों में, ऑफिसों में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. इनके जो स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं ना, वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं. ठीक है, और उनको मार्केट में आप इजीली अवेलेबल भी रहते हैं, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को. ओके, नाउ laptop, similar in operations to desktop computer, laptop computer are
लैपटॉप कंप्यूटर आर मिनिएचराइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल यूज। ठीक है, ये सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा साइज का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी जो इसका यूज है सेम यूज आपका लैपटॉप को होता है। लैपटॉप्स रन ऑन सिंगल बैटरी or an external adapter that charges the computer battery. They are enabled with an inbuilt keyboard, touch pad acting as a mouse and liquid crystal display. मीन्स इसमें आपका जो माउस रहता है यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, ये इसका मॉनिटर है। ठीक है, डेस्कटॉप में ये अलग इसका मॉनिटर, इसका माउस अलग है, कीबोर्ड इसका इधर है, ये आपका सीपीयू। बट लैपटॉप में आपका सारा इसी के अंदर रहता है। ठीक है, ये इसका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस इधर हो गया एंड सीपीयू उसके नीचे रहता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी वगैरह थोड़ा सा अच्छी होती है। नाउ व्हाट इज नोटबुक? नेटबुक fall in category of laptops but are inexpensive and relatively smaller in size। मतलब ये क्या होती है नेटबुक या नोटबुक? आपकी लैपटॉप की कैटेगरी होती है, बस थोड़ा सा ये क्या होती है, सस्ती होती है और साइज में भी छोटी होती है। दे हैड अ स्मॉलर फीचर सेट एंड लेजर कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू रेगुलर लैपटॉप्स। ठीक है, एट द टाइम दे कम इनटू द मार्केट बट बात passing times notebooks to begin featuring almost everything that notebooks had. By the end of 2008 netbooks have begun to overtake notebooks in terms of market share and sales। ये आपका हो गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस PDAS। It is handheld computer and popularly known as a palm top। It has a touch screen and a memory card for storage of data। PDAS can also be used as portable audio players, web browser and smartphone। Most of them can access to internet by means of Wi-Fi communications। ठीक है, ये भी एक प्रकार के कंप्यूटर है, इनमें आप नेट वगैरह यूज कर सकते हो, ब्राउजर यूज कर सकते हो एंड लाइक स्मार्टफोन जैसे होते हैं, आप इसमें ऑडियो प्लेयर और वीडियो प्लेयर सारा चला सकते हैं। जो PDAS की शॉप होती है आपने अक्सर देखा होगा, उनके पास इस टाइप का ऑन टॉप कंप्यूटर रहता है। What is mini computer? In terms of size and processing capacity, mini computer lies in between mainframe and micro computer। ठीक है, मिनी कंप्यूटर इनको हम माइक्रो कंप्यूटर एंड mainframe कंप्यूटर का बीच का कंप्यूटर बोल सकते हैं। Many computer are also called mid-range systems or workstations। The terms began to be popularly used in 1960 to refer to relatively smaller third generation computer। They took up the space that would be needed for a refrigerator and used transistor and core memory technology। The 12-bit PDP-8 mini computer of the digital equipment corporation was the first successful mini computer। ठीक है, कौन सा फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर था? PDP-8। A mini computer is a multi-processing system capable of supporting from 4 to about 200 users। मतलब मिनी कंप्यूटर जो रहता है ना, एक बार में उससे 4 to 200 यूजर्स वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है बट mainframe कंप्यूटर से छोटा होता है। Variable computers, a record setting step in the evolution of computer was the creation of variable computers। These computers can be worn on the body। Military and health professionals have incorporated variable computer into their daily routine। When the user's hands and sensory organs are engaged in other activities, variable computer are of great help in tracking human actions। आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, आपका जो बीपी वगैरह चेक करने के लिए रहता है, ऑक्सीजन लेवल चेक करने, ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए जितना भी इक्विपमेंट रहता है वो सारा किस में आता है? वेरिएबल कंप्यूटर्स। ठीक है, जिनको हम पहन सकते हैं, जिनको हम अपनी बॉडी से पहनते हैं, टच करके वो सारा सेंसर के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, व्हाट आर सर्वर्स? दे आर कंप्यूटर्स डिजाइन टू प्रोवाइड सर्वर्स टू क्लाइंट मशीन एंड अ computer network। They have larger storage capacity and powerful processors। Running on them are programs that serve client requests and allocate resources like memory and time to client machines। Usually they are very large in size as they have large processor and many hard drives।
दे आर डिजाइन टू बी फाइल सेफ एंड रेजिस्टेंट टू क्रैश। हम इनको मान सकते हैं सर्वर, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनमें सारा डेटा एक ही जगह सेव किया जाता है सर्वर में, ठीक है। लाइक आपका रेलवे हो गया, बैंक का सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, एयरलाइंस का डेटा होगा, इनका क्या सर्वर रहता है और सारे कंप्यूटर उसी सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए रहती है उनको उसी सर्वर से कैच करते हैं, लेते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? द हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क कैन बी effectively performed by means of supercomputer. Quantum physics machines, weather forecasting, molecular theory are just studied by means of supercomputer. Their ability of parallel processing and their well-designed memory hierarchy give the supercomputer large transaction processing power. Supercomputer क्या होते हैं आपके, ये इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहती है ना बहुत अच्छी रहती है, साइज में भी थोड़ा बड़े होते हैं, बट इनका जो मेन यूज होता है क्वांटम फिजिक्स हो गया आपका, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मॉलिक्यूलर थ्योरी की स्टडी करने के लिए, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है, और बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन ए मैन फ्रॉम, मतलब इनकी स्पीड भी बाकी सभी कंप्यूटर से कंपेयरिंग में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको सुपर कंप्यूटर बोल रहे हैं, ठीक है। टैबलेट्स, tablets are mobiles computer that are very handy to use. They use a touch screen technology. Tablets come with an on-screen keyboard or use a stylus or a digital pen. Apple iPod redefined the class of tablets, ठीक है। tablets आप लोगों ने देखे होंगे नॉर्मली, ठीक है, ये भी एक प्रकार के कंप्यूटर है। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें पॉइंट रिमेंबर है आपके, ए कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड. Analog computers can perform several mathematical operations simultaneously. Digital computers are either general purpose computers or special purpose ones. Hybrid computers are a combination of both digital and analog computers. We already discussed what is hybrid computers, ठीक है। Mainframe computers can substitute for smaller several small servers, ठीक है। आपको जैसे बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उन सर्वर को हटा के सिंपल एक कंप्यूटर का यूज करेंगे, आपका पूरा वर्क एक ही कंप्यूटर के द्वारा हो जाएगा, बिकॉज मैन फॉर कंप्यूटर की कैपेसिटी रहती है वर्क करने की बहुत अच्छी है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एज मच एज मैन फॉर्म डू, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज रहता है मैन फ्रॉम कंप्यूटर से थोड़ा कम रहता है। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज इंटेंडेड टू बी यूज ऑन अ सिंगल लोकेशन, ठीक है, एक ही जगह यूज होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर आर miniaturized and optimized for mobile uses. PDA has a touch screen and a memory card for storage of data. Mini computer lies in between mainframes and microcomputers. Servers have larger storage capacity and powerful processors, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट आपको पहचानना है कि सर्वर क्या है, तो सर्वर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, प्रोसेसिंग की पावर होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। द हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म बाई सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। टैबलेट्स आर मोबाइल कंप्यूटर्स डेट आर वेरी हैंडी टू यूज, ओके। सो ये हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो गया। अभी इसकी क्वेश्चन आंसर है आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, मैं आपको थोड़ा बता दूं उसमें क्या है, बहुत इजी है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मैन फ्रॉम कंप्यूटर्स, आपको लिखना है what is analog computers, what is mainframe computers, what is mini computers, what is server, what is supercomputer, what is variable computers, ठीक है। what do you know about mini computers, describe the main feature and characteristic of microcomputers, we already all discussed, ठीक है। अब सारा सब कुछ जितना भी इस चैप्टर में हमारा सारा क्वेश्चंस कवर हो चुका है। आपको उसके नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स सारा आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ओके। सो थैंक यू।